Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start a new chapter number 10, that is wind, water and climate. So now let's get started and let's see what's ahead. So in this chapter you will learn about sun and weather, air, more about water, water cycle and purification of water. So now let's see these topics one by one. But before that we will do warm up. Look at the pictures given below. Match the pictures with their weathers. बच्चों आपको क्या करना है? Pictures दिए हुए हैं, weathers दिए हुए हैं, आपको इन्हें match करना है. Okay? So now let's start this chapter. Weather is the condition of a particular place at a particular time in the terms of temperature, wind, air pressure and moisture. It is not the same everywhere. It might be a hot and sunny day where you live, but in other parts of the world it may be cloudy or snowing. Also, it may be sunny in the morning, but it may rain in the afternoon. So बच्चों, आप जानते हैं कि हर जगह जो वेदर है आपका वो सेम नहीं है. ऐसा होता है कि सुबह सनी होता है, शाम में क्या होता है बच्चों, मौसम ठंडा हो जाता है. ऐसे ही अभी जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ बारिश हो रही है तो ऐसा भी तो हो सकता है कहीं और बारिश ना हो रही हो, वहां सनी डे हो. तो हर मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड जरूरी नहीं है कि हर जगह जो वेदर है वो एक सा हो. ठीक है. So now words to know. Moisture, very small drops of water present in air. तो बच्चों moisture क्या होता है? वो बिल्कुल small drops of water जो कि air में present होते हैं, that is the moisture. Now let's move to another topic, that is sun and weather. Okay, it is the sun that causes changes in the weather, the movement of air, formation of clouds or the changes of the forms of water is due to the heat of the sun. अब बच्चों देखिए, आप जानते हैं कि सन जो है वो क्या करता है, वही एक कारण है जिसकी वजह से हमारे अर्थ पर जो वेदर है वो चेंज होता रहता है. राइट, क्योंकि हमारा अर्थ क्या है, मूव कर रहा है. तो बच्चों जब मूवमेंट हो रही है तो ऐसा होता है कि सन की हीट एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ पर पड़ती है और ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ क्या होता है बच्चों, फिर दूसरा आपका वेदर स्टार्ट हो जाता है. और साथ ही अर्थ मूव करता रह रहा है तो हर जो वेरिएशन है बच्चों वो मौसम का होता रहता है. वी नो दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस कॉजेस डे एंड नाइट. वी ऑल know that the sun shines very brightly overhead at noon. As the sunlight falls directly on the earth, thus it is very hot at noon. While in the morning and the evening, the rays of the sun are slanted and thus the earth does not get heated up too much. This is the reason why mornings and evenings are cooler than afternoons. अब बच्चों आप जानते हैं कि जब बीच पर यानी अर्थ के बीचों बीच जब सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है तो दोपहर में सबसे ज्यादा गर्मी होती है. बट जैसे जैसे अर्थ मूव करता है बच्चों, जो सन की रेज होती है वो जब स्लांटली अर्थ के ऊपर पड़ती है तो वहां पे ज्यादा गर्मी नहीं होती. वो जो रीजन होते हैं वो कंपेयरिंग टू मिड बच्चों कैसे होते हैं, हल्के से ठंडे होते हैं. वी ऑल्सो नो दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. इट इज tilted on its axis at an angle while revolving around the sun. One hemisphere is close to the sun while the other hemisphere is away from the sun. अब बच्चे जानते हैं कि आप जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है और अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पर हल्की से टिल्ड है. राइट, और साथ ही जो उसका वन हेमिस्फेयर है वो किधर है, सन के क्लोज है और दूसरा हेमिस्फेयर सन के अवे है. The part that is closer to the sun has longer and warmer days and has summer. और बच्चों जो हेमिस्फेयर का पार्ट जो कि सन के करीब है वहां पे ये लॉन्गर होते हैं, साथ ही बच्चों दिन गर्म होता है और गर्मी का मौसम होता है. वहीं पर जो बच्चों जो दूसरा पार्ट है वहां पर क्या होता है, दिन छोटा होता है और मौसम कैसा होता है, ठंडा. While the other part that is away from the sun has shorter and cooler days and has winter. Thus the revolution of the earth around the sun causes changes in the season. इसी कारण बच्चों अर्थ के जो रेवोल्यूशन है जो सन के अराउंड हो रहा है वो क्या करता है, सीजन के चेंज करने का कारण होता है. ठीक है. नाउ लेट्स सी द अनदर टॉपिक, दैट इज एयर. एयर इज ऑल अराउंड अस. इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. जो एयर है बच्चों आप जानते हैं हमारे चारों तरफ है, वो कैसी है, वो मिक्सचर है बहुत सारे गैसेस की. वो क्या करती है, नाइट्रोजन कंटेन करती है, ऑक्सीजन कंटेन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और बहुत सारे डस्ट पार्टिकल कंटेन करती है. ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है बच्चों अराउंड द अर्थ उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. और जो एयर मूव कर रही है इसे क्या बोलते हैं, विंड. व्हेन द विंड इज जेंटल एंड प्लीजेंट इट इज कॉल्ड ब्रीज. अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ गेज.
तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, जब एयर जेंटल और प्लीजेंट होती है, यानी विंड जेंटल प्लीजेंट होती है, उसे हम ब्रीज कहते हैं, और जब वो स्ट्रॉन्ग विंड होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गेल। However, sometimes the wind is very strong and is followed by thunder and lightning. और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों विंड काफी स्ट्रांग होती है और थंडर और लाइटनिंग भी हो रही होती है। दिस इज कॉल्ड द स्टॉर्म। स्टॉर्म्स आर very dangerous. They can cause a lot of damage. They can uproot the trees, hurts etc. वहीं पर बच्चों जो स्टॉर्म्स होते हैं वो काफी डेंजरस होते हैं, काफी ज्यादा डैमेज करते हैं और साथ ही ट्रीज को उखाड़ भी देते हैं और घरों को भी उखाड़ देते हैं। Now let's see बच्चों words to know. Atmosphere, mixture of gases that surround the earth. बच्चों एटमॉस्फेयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो अर्थ के चारों ओर पाई जाती है। Now let's see the next topic, sea breeze. Okay, a coastal breeze blowing from sea towards the land is called sea breeze. It occurs during the daytime. During the day, the land gets heated quicker than sea. Air above the land becomes hot and lighter. The hot air rises up from the land and cool air from the sea into take its place. अब बच्चों देखिए, कोस्टल ब्रीज आपने सुना होगा। कोस्टल ब्रीज क्या करती है, वो सी से, मतलब कहां से, फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड द सी ब्रीज। जो बच्चों ब्रीज होती है जो कि सी से लेकर लैंड तक की तरफ जाती है उसे सी ब्रीज कहते हैं। ये क्या होता है बच्चों, ये डे के टाइम होता है। और बच्चों डे टाइम में ड्यूरिंग द डे जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू सी के, और एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉट। और जो बच्चों हवा होती है लैंड के ऊपर वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और हल्की हो जाती है। द हॉट एयर राइजेस अप फ्रॉम द लैंड एंड कूल एयर फ्रॉम द सी फ्लोज इनटू इट्स टेक प्लेस। बच्चों जब गर्म हवा काफी ज्यादा हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठ जाती है तो उस जगह पे खालीपन हो जाने के बाद जो सी से हवा आ रही होती है ठंडी ठंडी, वो उसकी जगह ले लेती है। नाउ लेट्स सी बच्चों सी ब्रीज पिक्चर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, लैंड ब्रीज। A coastal breeze blowing from land towards the breeze is called land breeze. It occurs at night. अब बच्चों जो कोस्टल ब्रीज बहती है कहां से, लैंड से लेके सी तक, उसे क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं। साथ ही बच्चों ये कब होती है, ये रात के समय होती है। एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी। रात के समय बच्चों जो जमीन होती है वो सी के अकॉर्डिंग जल्दी ठंडी हो जाती है। सो द एयर अबव द सी इज वार्मर द लैंड the air above the sea is warmer than the land air. तो बच्चों जो एयर सी के ऊपर है वो क्या होती है, वो गर्म होती है अकॉर्डिंग टू लैंड एयर के। The warm air rises up and the cool air from the land now rushes towards the sea. और बच्चों अब आपको पता है जहां गर्म हवा होगी वो हल्की होगी और जैसे ही वो ऊपर जाएगी तो ठंडी हवा उसकी जगह ले लेगी। सेम बच्चों उल्टा यहाँ पे भी हो रहा है। जब जो समुद्र के ऊपर की हवा है वो गर्म होती है तो वो क्या हो जाती है, द एयर अबव द सी इज वार्मर देन द लैंड एयर, राइट। सो बच्चों जो गर्म हवा है वो उठती है ऊपर और जो ठंडी हवा है लैंड से वो क्या होती है, सी के तरफ चली जाती है। तो इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। नाउ बच्चों पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ब्रीज एंड लू। Okay, now let's see the next topic बच्चों, more about water. 4 part of our earth is covered with water. Water is found in lakes, rivers, seas, oceans etc. It is also found underground and even in the air. अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है वो 3rd 4th पार्ट किससे घिरा हुआ है, पूरा का पूरा पानी से। पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, लेक्स में, रिवर्स में, सीज में, ओशियंस में एक्सेट्रा। साथ ही बच्चों वाटर हैज 3 स्टेट्स, हमने पढ़ा था। दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These states are interchangeable. Water changes its state on cooling and heating. Now let's see बच्चों evaporation. Evaporation क्या है, the heat of the sun changes water into water vapor. The process of changing water vapor on heating is called evaporation. बच्चों जो वाटर लिक्विड को हम वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे evaporation कहते हैं। If you keep a dish of water opening in the sun, the level of water in it will go down. अगर बच्चों आप किसी डिश में पानी को रख दें कहां पर, सन के पास, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जो लेवल ऑफ वाटर है वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। इट हैपेंस ड्यू टू द हीट ऑफ द सन विच मेक्स इट एवोपरेट इनटू द एटमॉस्फेयर। और बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन, जो क्या कर रहा है, पानी को एवोपरेट कर रहा है एटमॉस्फेयर में। एवोपरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एट अ फास्टर रेट देन, कब बच्चों, द वेदर इज विंडी, जब बहुत तेज हवा चलती है। द टेम्परेचर इज हाई, जब टेम्परेचर हाई होता है। द एयर इज ड्राई एंड द एक्सपोज सरफेस इज लार्ज। तो ये बच्चों कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एवोपरेशन टेक्स प्लेस करता है।
Now let's see condensation. The change of water vapor into water by cooling it's called condensation. जब हम water vapor को water में convert करते हैं by cooling, so उसे हम कहते हैं condensation. It is a reverse process of evaporation. Evaporation का बिल्कुल reverse process है. If you boil water in a pan and cover it with a lid, you will find a tiny water droplets on the underside of the lid. और बच्चों जब आप पानी को boil कर कर उसे एक pan में कवर कर दो लिड से, तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि बच्चों लिड के अंदर आप देखोगे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, अंडर साइड। तो आप देखोगे दीज ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड एज द वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ड्यू टू कंडेंसेशन। किसके कारण? कंडेंसेशन के कारण। नाउ बच्चों आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं इसमें, वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस ऑन द लिड। नाउ कंडेंसेशन कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। और बच्चों कंडेंसेशन ही कारण है किसका? फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स का। इन विंटर अर्ली इन द मॉर्निंग यू कैन सी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स and grass. These tiny droplets are called dew. They are formed by the condensation of water vapor present in the air. अब बच्चों आप देख रहे हैं ये जो वाटर वेपर है, आप ठंडी के मौसम में देखते हैं कि पत्तों पे या फिर बहुत जगह पानी के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। वो बच्चों ड्रॉपलेट्स को हम ड्यू भी बोलते हैं। और ये कैसे बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ओके, जो कि हमारे एयर में बच्चों प्रेजेंट है। Now let's see water cycle. The process of evaporation, condensation, precipitation takes place continuously in nature. The groundwater get evaporate from lakes, ponds, rivers, oceans and other water bodies, condenses and fall as rain, snow, etc. In the water bodies again, the whole process is called water cycle. अब बच्चों आप जानते हैं वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल में ऐसा होता है कि आपके लेक से या किसी भी वाटर बॉडी से वाटर एवोपरेट होता है, कंडेंस होके वो दोबारा क्या हो जाता है? वो रेन के फॉर्म में दोबारा उन्हीं जगह पे जहां से वो एवोपरेट हुआ था चला जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? हम वाटर साइकिल। आप इस पिक्चर के थ्रू भी वाटर साइकिल समझ पा रहे होंगे। नाउ लेट्स सी बच्चों प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। Impure water can cause many diseases, so we should drink only pure water. There are some ways to make water pure. चलिए देखते हैं कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू हम वाटर को प्योर कर सकते हैं। फर्स्ट है बच्चों फिल्टरेशन। Filtration is an easy process to purify the water. In this process, water is passed through a filter paper. कैसे बच्चों? फिल्टरेशन में मतलब क्या होता है? हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं जिसके थ्रू वाटर को क्या किया जाता है? पास किया जाता है उस फिल्टर पेपर से। द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लीन वाटर इज कलेक्टेड बिलो। इससे क्या होता है बच्चों? जो प्योर वाटर है वो तो क्या हो जाएगा? फिल्टरेट हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज है वो फिल्टर में ही रह जाएगी। Now बच्चों the process in which water is cleaned by passing it through filter paper is called filtration. और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला गया है? फिल्टरेशन। आप बच्चे यहाँ पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। तो इस पिक्चर में बच्चे जो फिल्टर के थ्रू हमने पानी डाला है, जो रेजिड्यू है वो तो फिल्टर पेपर में रह गया और साथ ही फिल्टरेट वाला वो आपके बीकर में आ गया है। Now let's see chlorination. In this method, chlorine is added to water to kill germs. So chlorination is the process of adding chlorine to the water. बच्चों क्लोरीनेशन क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्लोरीन क्या करते हैं? वाटर में डालते हैं टू किल जर्म्स। क्लोरीनेशन में हम क्या करते हैं? क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हैं। Now let's see boiling. Boiling of water is the easiest way to make water pure. Boil the water at least for 10 to 15 minutes to kill the germs in it. Boiled water should be stored in clean and covered utensils. अब बच्चे जो boiling of water आपका जो प्रोसेस है वो सबसे easiest way है वाटर को प्योर करने का। बच्चे जब हम वाटर को बॉईल करते हैं एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, तो इसके कारण जो जर्म्स है वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं? वो मर जाते हैं। और बॉइल्ड वाटर को हमेशा क्या करना चाहिए बच्चों? क्लीन और कवर्ड यूटेंसिल्स में स्टोर करना चाहिए। नाउ लेट्स सी द अनदर टॉपिक दैट इज sedimentation and decantation. In this process, water is kept undisturbed for some time. The impurities settle down at the bottom of the container. This is called sedimentation. बच्चों sedimentation के प्रोसेस में क्या होता है कि आप वाटर को स्टिल रख देते हो विदाउट अनडिस्टर्ब, आई मीन विदाउट डिस्टर्ब, यानी अनडिस्टर्ब करके रख देते हो कुछ समय के लिए। जो इम्प्योरिटीज होती हैं वाटर के अंदर वो सेटल डाउन हो जाती है एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। प्योर वाटर कैन बी सेपरेटेड स्लोली बाय पोरिंग आउट द क्लीन वाटर इन अनदर वेसल। और साथ ही बच्चों जो प्योर वाटर सेपरेट हो चुका है उससे हम क्या कर लेते हैं? पोर आउट कर लेते हैं किसी अनदर वेसल में, जिसे हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। बच्चों इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं दैट इज अ मडी वाटर जो कि सेटल डाउन हो चुका है बॉटम पे, दैट इज सेडिमेंट्स, और उसे क्या कर लिया हमने? क्लीन वाटर को
डिकंटेट कर लिया. नाउ सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन. नाउ बच्चों लेट्स सी द फन एक्टिविटी. व्हाट यू हैव टू डू, मेक सम सोप सॉल्यूशन एंड टेक अ स्ट्रॉ, blow some water bubbles in front of glowing sun and try to find out the 7 colors rainbow in the bubbles. तो बच्चों आपको खुद इसे करना है और आप देखेंगे वहां पे विबग्योर. ओके, विबग्योर दैट इज द 7 color of the rainbow. नाउ बच्चों लेट्स सी स्क्रैच योर माइंड. सो इन दिस स्क्रैच योर माइंड लेट्स सी air, water and weather. First we will see बच्चों water. So in the case of water बच्चों आप देख रहे हैं evaporation, कंडेंसेशन, वाटर साइकिल. फिर आपका है वाटर प्यूरिफिकेशन. वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, क्लोरीनेशन से, फिल्टरेशन से, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन से, आफ्टर दैट बॉइलिंग. दीज ऑल आर द प्रोसेस ऑफ बच्चों वाटर प्यूरिफिकेशन. नेक्स्ट है आपका वेदर. तो वेदर बच्चों पहला सन क्या करता है, कॉजेज द चेंज इन वेदर. नेक्स्ट डे एंड नाइट. तो इसमें क्या होगा, रोटेशन ऑफ द अर्थ. देन सीजन्स, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. आफ्टर दैट नेक्स्ट है बच्चों आपका विंड ब्लोज. ये भी किसका है, वेदर का. नाउ लेट्स सी एयर. एयर में आप देख रहे हैं फर्स्ट है आपका विंड, जो कि क्या मतलब बच्चों उसका, सिंपल मूविंग एयर. नेक्स्ट ब्रीज. बच्चों ब्रीज क्या होती है, हमने पढ़ा था ना, जेंटल विंड. कितने टाइप की, 2, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. आफ्टर दैट गेल, स्ट्रॉन्ग विंड. देन स्टॉर्म, वेरी फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड. सो बच्चों ये थे आपके एयर, वाटर एंड weather के बारे में. So I hope you have understood it very well. So student, that's all for this chapter. Now you have to revise and try to do all the questions. So I'll meet you in the next class with the new chapter. Till then, keep learning and keep exploring. Bye bye students.